नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं प्रशासन, राजनीति, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर साहनेवाला से है, जहां साहनेवाला में एक पॉजिटिव ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, जहां गांव के लोग अपने सरपंच के कामों से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर है राजधानी से, जहां राजधानी में कर्मचारी के विरोध की बड़ी खबर आई है। वेतन बढ़ोतरी करते रोकने के लिए फैसले के खिलाफ कर्मचारी से नाराजगी बढ़ती दिख रही है। उसके साथ ही तीसरी खबर है शिमला से, जहां हिमाचल के शिमला में विकास कार्यों को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सरकार सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। वहीं चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से विरोध प्रदर्शन आई है। उसके साथ ही मजदूरों पर लाठी चार्ज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो आइए बात करते हैं इन चारों खबरों को विस्तार में। पहली खबर साहनेवाला क्षेत्र से है, जहां साहनेवाला क्षेत्र पिंड सीधा से ग्राउंड रिपोर्ट आई है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने भाई जोरदार सिंह जोड़ा गांव पहुंचे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने अपने सरपंच कुलदीप सिंह के कामों की जमकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि 30 साल बाद गांव की गलियों का निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि अब गांव की ज्यादातर समस्याएं दूर हो चुकी हैं। हालांकि पानी की समस्याएं अभी भी बाकी है, जिसे जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी सर, सीधा पिंड पहुंचे हो की मुद्दे लेके पिंड वासी ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੀੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਰੋਡ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਭੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ 20 ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ CM ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ।
ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮਿਲ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ? ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਆਈ ਨੂੰ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਦਾ। ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਰਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇਗਾ ਉੱਧਰ ਮਗਰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰਕ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਸੀੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਨਾਮ ਆਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੀੜੇ ਖੜੇ ਆ ਸੋਹ ਰਾਮ ਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਬਿੰਬਰ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਸੋਹਣ ਹੈਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਕੁਲਦੀਪ राम। राजधानी से कर्मचारी आंदोलन की खबर सामने आई है, जहां साहब सोसाइटी के कर्मचारी ने वेतन बढ़ोतरी रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध जताया है। कालीबाड़ी हॉल के आयोजित अधिवेशन बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं, जहां कर्मचारियों का कहना है कि वो उनकी सैलरी पहले ही कम है और ये फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। यूनियन ने आरोप लगाया है कि एजीएम में कर्मचारी को शामिल नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं सैफ सोसाइटी अध्यक्ष। आज एक अधिवेशन यहाँ कालीबाड़ी हॉल में किया जा रहा है, किसका यह अधिवेशन है और क्या इसका उद्देश्य, क्या चर्चा? आज जो हमारा अधिवेशन जो है कालीबाड़ी हॉल में किया जा रहा है, इसमें जो हमारे मुख्य डिमांड थी, जो एजीएम में हमारा 10% बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, उसको लेके जो है आज ये हमने अधिवेशन रखा है। इसमें सैब कर्मचारी भी है और ड्राइवर यूनियन कर्मचारी भी साथ जुड़ गए हैं। तो जब एजीएम हुआ था तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी थे और विधायक भी थे, तो उस वक्त आपने अपनी बात नहीं रखी? जब एजीएम हुई थी, एजीएम में जो ऐसे तो हर एजीएम में जो है हमारे को जो है स्पेशल तौर पे बुलाया जाता है, पर ये पहली एजीएम थी जिसमें जो है कर्मचारियों की तरफ से इस एजीएम में कोई नहीं था और बोलने के लिए कोई नहीं था। इनका जो अपना कार्य था वो आसान हो गया था। अभी भी इन्होंने जो डीए दिया है, डीए का कोई भरोसा नहीं है। डीए क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं जो हमारे पक्के कर्मचारी है वो भी 2-3 सालों से इनको जो डीए नहीं मिल रहा है। क्या मांग है आप? हमारी बस यही मांग है, जैसा हमारा 10% पीछे से चलता आ रहा है, लगता आ रहा है, उसी ढंग से जो आगे भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर नहीं चलता है तो फिर क्या रणनीति बनाएंगे? अगर नहीं चलता है तो इसमें जो हमारी जो भी आज मीटिंग में डिसाइड होगा हमारा, उसके बाद जो है हम अपनी रणनीति आगे तैयार करेंगे। हो सकता है इसके लिए हम आंदोलन में भी जाए। और कुछ जो एजीएम हुई थी उसमें जो हमारा जो घाटा और नाफे का ये भी दिखाया था उसमें कि कमिश्नर साहब की तरफ से दिया गया था 21 करोड़ रुपए जो खर्च आ रहा है सालाना और 16 करोड़ आमदनी है, जो कि सरासर बेवकूफ़ बनाया गया। वहाँ जितने मंत्री बैठे होते चाहे जो भी थे उन सबको वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया। जो हमारे पास आंकड़ा है, हमारा जो साल की इनकम है 17.5 करोड़ रुपए है और जो खर्चा है हमारा वो तकरीबन जो है हमारा महीने का जो एक करोड़ के लगभग आ रहा है। 12-13 करोड़ खर्चा है सिर्फ जो सैब का है। बाकी इन्होंने जो अलावा खर्चा जोड़ा हुआ है हमारे रोड शिपिंग स्टाफ का जोड़ा हुआ उसमें, और साथ में ड्राइवरों का भी जोड़ा हुआ है।
जो कि जिसकी लायबिलिटी जो है एमसी प्रशासन की है, वो प्रशासन दे, सेफ सोसाइटी क्यों देगी उसको? नहीं तो आपने पर्सनली मंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया, अपनी बात रखने का प्रयास नहीं किया? हम मंत्री जी से भी मिले थे, विधायक जी से भी मिले थे, हमने अपनी बात रखी थी उनके आगे, पर इनको जो ऐसे घुमाया गया कमिश्नर साहब के द्वारा कि ये जो उनकी भाषा बोलने लगे वहाँ पे। जिस तरह से नगर निगम द्वारा जो है सेहत कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम बनाने की बात कही थी, क्या वो बन गए हैं हर वार्ड में? आप संतुष्ट हैं उससे? जो भी अभी बने हुए हैं चेंजिंग रूम, वो तो मुर्गी खाना है, मुर्गों जो उसमें तो मेरे ख्याल से मुर्गों को रखे अच्छा है, वो आदमी के बैठने लायक नहीं है। और जो अभी बात करें बनाने के लिए, अभी उसके लिए बात चली कि बना के लिए हमने ये डिमांड रखी कि चेंजिंग रूम ऐसे होने चाहिए जिसमें लेडीज़ के लिए अलग हो, जेंट्स के लिए अलग हो, और उसमें पानी की सुविधा हाथ साबुन वगैरह की सुविधा सब कुछ मिलनी चाहिए। खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से विकास कार्य की खबर सामने आई है, जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपर जैशी धार संपर्क सड़क का शिलान्यास किया है। जी आपको बता दें, करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क 3 गांवों की जोड़ेगी। उसके साथ ही मंत्री ने कहा कि ये परिजनों से 6 महीने से पूरी ली जाएगी। प्रदेश में सड़क विकास और चौड़ीकरण का सरकार है और उसके साथ ही ये सरकार इस पर फोकस करेगी। का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है और खुशी है कि कुछ समय बाद आपके इस इलाके का मुझे दौरा करने का मौका मिला। कुछ दिन पहले पिछली बरसातों में भी हमने इलाके का 2 दिवसीय दौरा किया था और बरहाड़ा में भी कार्यक्रम था, मगर उस दिन बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश थी और ज़्यादा लोग उसमें उस दिन इलाके में नहीं आ पाए। कारण यही था कि हम यहाँ पे आके जो यहाँ के इलाके के मसले हैं, इलाके के मुद्दे हैं, आपके जैशी बरहाड़ा में जो जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको सुनना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। और जो पूरा हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जिसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ पे जो कार्य पूरे इलाके के अंदर चल रहे हैं, ये इलाका भी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से समानता के साथ विकास करने में विश्वास रखता हूं। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है। हम हमेशा जब बात रखते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर रखते हैं, चाहे बाहर रखते हैं, चाहे दिल्ली में रखते हैं, मैंने हमेशा हिमाचल के 75 लाख लोगों की बात करी है और समानता के साथ हर इलाके को आगे ले जाने में हमने हमेशा विश्वास रखा है। ना मैं क्षेत्रवाद में विश्वास रखता हूं, ना मैं जातिवाद में विश्वास रखता हूं, ना ही हम इलाकावाद में विश्वास रखते हैं। मेरे लिए हिमाचल का हर इलाका बराबर है। और उसी तरीके से अगर हम शिमला ग्रामीण की भी बात करें, जहां पे सबसे पहली जिम्मेवारी मेरी विधायक के रूप में है, जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है, दूसरी बार आपने मुझे अपना कीमती मत दिया है, यहाँ से अपना समर्थन दिया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ के जितने भी मसले हैं, विकास के मसले हैं, उनको समय पर पूरा करने का प्रयास करें। उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको भी सुने। आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत सकारात्मक रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ के जो ज्वलंत मसले हैं आपके पंचायत के, खास करके जो इस प्रोजेक्ट से संबंधित है, उसके बारे में भी जो लेटेस्ट यहाँ की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी हमको जागरूक करवाया गया है। और ऐसा नहीं है कि आज ही
इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। समय समय पर आपके साथी, इस क्षेत्र के हमारे सभी साथी हमसे शिमला में भी मिलते रहते हैं, हमारे कार्यालय में मिलते हैं, हमारे दफ्तर में मिलते हैं, फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और हम लगातार उन विषयों को इन प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ उठाते हैं। कुछ मसले हैं उसमें से जो सॉल्व हुए भी हैं, मगर कई है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। और ये आजकल इस इलाके का मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो बनकर जो है उजागर हुआ है। तो इस पे हमारा ध्यान एकत्रित करना और उस पे कार्रवाई करना ये हमारा दायित्व है। मैं आपको सबसे पहले तो अपने अभिभाषण की शुरुआत में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे कोई संकोच नहीं है। आपको याद होगा पहले भी मैं जब यहाँ पे एक बारी धरना प्रदर्शन हुआ था, बतौर मंत्री मैं आपके साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट की साइट पे आया था और हमने वहां पर भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हमारे क्षेत्र के और खास करके जो प्रोजेक्ट के अफेक्टेड पंचायतें हैं उनके लोगों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम सहन नहीं करेंगे। मगर ये भी सच है कि कुछ को लगाया जाता है फिर बाकी छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये जैसे अंग्रेजों के समय में था कंपनी राज का सिस्टम, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। उसमें कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, आपस में ही फूट पड़ जाती है। तो ये मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, मैं हर बारी जब भी यहाँ पे आता हूँ हर बारी ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपकी एकता सबसे महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र से विरोध प्रदर्शन की बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुड़गांव मानेसर ने मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जन संघर्ष मंच सड़कों पर उतरा गया है। जी आपको बता दें, दरअसल प्रदर्शनकारियों ने रोज मार्च कर निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मंच के प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई और बढ़ती कीमतों के खिलाफ मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए सरकार से मजदूरों की समस्याएं का समाधान करने के लिए मांग की गई है। इसी के साथ आप जानते हैं कि मानेसर में और गुड़गांव में जो वहाँ के मज़दूर हैं इस मांग के लिए लड़ रहे हैं कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैस मिल नहीं रही है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने मजदूरी में वृद्धि नहीं की है और 30,000 रुपये मजदूरी होनी चाहिए और 8 घंटे का कार्य दिवस सख्ती से लागू होना चाहिए और अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो नियमानुसार ओवर टाइम डबल दिया जाना चाहिए और जो PF है उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए और बाकी जो है गैस जो है खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार कह रही है वे छोटे सिलेंडर हमने लागू कर दिए लेकिन वास्तव में अभी भी मिल नहीं रही है, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसको लेकर के 2 अप्रैल से वहाँ गुड़गांव मानेसर में मजदूर हड़ताल पे हैं। विभिन्न कंपनियों के दर्जनों कंपनियों के मजदूर हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार ने और यहाँ के लेबर महकमे ने, यहाँ के श्रम मंत्री ने मजदूरों की बात सुनने की बजाय दमनात्मक कार्रवाई का रवैया अपनाया हुआ है। अभी बीच में कई बार जो है पुलिस ने दखल किया। 9 तारीख को वहाँ जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कर्मियों ने, ये हमने वीडियो आ रही हैं कि महिला मजदूरों के ऊपर लाठी बरसाई है, कपड़े फाड़े गए हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी एक महिला उसका सिर फूटा है, बहुत सारे मजदूर घायल हैं और इतनी पर नहीं रुकी है, हमारे 55 मजदूरों को सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें 20 महिला मजदूर हैं और बहुत संगीन धाराएं कि भी इन्होंने तो हत्या का प्रयास किया, आगजनी का प्रयास किया। और सबसे गजब की बात है कि अगर कोई मजदूर संगठन उसका आंदोलन का समर्थन करने के लिए गया केंद्रीय ट्रिब्यूनलों में से या किसी अन्य संगठन का, मासा के घटक संगठन गए तो के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है और जो मानेसर में पुलिस दमन चल रहा है उसके खिलाफ
यानी किस तरह से 20 महिलाओं को जेल में बंद कर दिया इन्होंने 2-3 दिन के अंदर, 40-45 मजदूरों पे और कैसा झूठे केस बना दिए हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही थी कि जो सरकार जो है मिनिमम वेज है वो बढ़ा दे। 11 साल से कोई मिनिमम वेज सरकार ने बढ़ाई नहीं थी, तो 2020 में रिव्यू होनी थी, वो नहीं की और अब करी है। और उसमें सरकार जो है वो जो मालिक हैं वो बोर्ड पे कंपनियों में लगा नहीं रहे थे, वो मांग कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था गुड़गांव और मानेसर में, और महिलाएं सड़क पे आ गई, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनको कहा सड़क खाली करो। यानी एक आज़ाद भारत में हमारी मजदूर महिलाएं, हमारे मजदूर भाई वो अपनी मांग भी नहीं उठा सकते, अपनी मिनिमम वेज की मांग नहीं कर सकते। वो महिलाएं कह रही हैं कि हमें गुड़गांव में 400 रुपये का किलो गैस मिल रहा है, महंगाई बहुत है, हमारा काम नहीं चलता, और ये बोर्ड पे लगाया जाए मिनिमम वेज। लेकिन सरकार जो है बड़ी प्रचार कर रही है कि ये लेबर कोड अच्छे है, हमने रिव्यू कर दिया, इतना बढ़ा दिया, जबकि उसके तहत तो और ज़्यादा बढ़नी, मतलब वो तो और ज़्यादा कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं कि आप बोल ही नहीं सकते। तो ये जो है बहुत ही तानाशाही है। हम आज ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पे ये मतलब आज बाय चांस ज्ञापन ये दे रहे हैं, और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई और इक्वलिटी आए। लेकिन जो महिलाओं को, दलितों को सेकंड दर्जे का सिटीजन माना जाता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज मजदूरों की स्थिति क्या है? वो बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो 80% मजदूर आज़ाद भारत में, मतलब श्रम की जो इतनी बेकदरी हो रही है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। और वो जो है जैसे मनरेगा भी बंद कर दिया इन्होंने, कोई जो है LOC ये बैठे हैं, और जो पहले कमाई थी वो भी कम हो गई। तो इसके जो दमन है, ये एटलीस्ट जो पुलिस दमन है आंदोलन में, जो एक धारा 144 लगा के कह देते हैं 4 से ज़्यादा मजदूर इकट्ठे नहीं होते, कंपनी मालिक वाले पुलिस को ले आते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। डेमोक्रेसी में इस तरह तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का हक होना चाहिए। मैं सुदेश कुमारी, जन संघर्ष मंच हरियाणा की स्टेट की महासचिव। मैं कॉमरेड फूल सिंह, राज्य प्रधान जन संघर्ष मंच हरियाणा। आज जो इसके गुड़गांव में कई कंपनियों ने इस बात का प्रचार कर रही है कंपनियां कि भाई हमने मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनकी मांग थी उसकी पूरी करने, भाई हमने पूरी कर दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पे।